بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج کے اس ویڈیو میں ہم سلطان الاولیاء غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایمان افروز واقعات اور کرامات کا تذکرہ کریں گے کہ جن کو دیکھ کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا۔ کیسے بڑے بڑے جادوگر آپ کے مرید ہو گئے۔ تو محترم دوستو، مزید تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ فرمائیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور حلقہ احباب میں بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ایمان کو تازہ کر دینے والے واقعات اور کرامات سے مستفید ہو سکیں۔ 7ویں صدی ہجری میں ہندوستان نہایت پراشوب، جاں گسل اور خطرناک حالات سے دوچار تھا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ مسلم ممالک میں کشت و خون کا بازار گرم تھا۔ منگولوں کی بربریت عام تھی۔ عدل و انصاف سے سرسبز و شاداب علاقے ظلم و جور کی باد خزاں سے ویران اور سنسان ہو چکے تھے۔ ملت اسلامیہ کئی فرقوں میں بٹ کر اپنی قوت و شوکت کھو چکی تھی۔ سفاکی اور بے رحمی اس قدر عام تھی کہ ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ ملحدین نے پورے ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا کہ یکایک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور خراسان سے ایک قدسی صفت انسان کی ہندوستان آمد ہوئی، جس نے اپنے علوم و معارف سے پورے ہندوستان کو اس طرح مسخر کیا کہ صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی اس کا نام لیتے ہوئے سر عقیدت سے جھک جاتا ہے، گردنیں خم ہو جاتی ہیں اور غیر معمولی روشن و تابناک کارناموں کی ایک طویل فہرست دل و دماغ کے پردہ سہمی پر جلملانے لگتی ہے، جنہیں دنیا فخر الکاملین، قطب العارفین، حجت الاولیاء، سراج الاتقیاء، خواجہ خواجگان سلطان الہند، شیخ الاسلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے اسلامی علوم، دعوتی جدوجہد اور اصلاح و تربیت کے ذریعے ہندوستان میں اخلاقی اور روحانی سلطنت کی ایسی بنیاد رکھی کہ ہر طرف توحید و حق کے زمزمے بلند ہونے لگے۔ شاعر اسلام کی تابندگی لوٹ آئی۔ مسلمانوں کے قلوب میں ایمان کی ٹمٹماتی شمع روشن و تاباں ہو گئی۔ حق کی خاطر مر مٹنے کے جذبات فروغ پانے لگے۔ امن و سلامتی کی فضائیں اور راحت و سکون کی ہوائیں چوں طرف عام ہو گئیں۔ ہر چند کہ پہلی صدی ہجری میں ہی یہاں تبلیغ اسلام کے دستے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن آپ کی آمد کے بعد آپ کی ایمانی، روحانی، اخلاقی تعلیمات نے ہندوستان میں اسلام کو جلا بخشا اور ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ جوک در جوک مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی 14 رجب 537 ہجری ماہ اپریل سن 1143 روز دوشنبہ صبح صادق کے وقت جنوبی ایران کے علاقے سیستان کے ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نسبی اعتبار سے نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کا شجرہ عالیہ 12 واسطوں سے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین کا شمار دولت مند تجار اور با اثر افراد میں ہوتا تھا، مگر مال و ثروت کے ساتھ ساتھ آپ عابد و زاہد شخص تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود ابتدا ہی سے بہت قناعت پسند تھے۔ آپ ابھی 15 سال کی عمر ہی کو پہنچے تھے کہ والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ والدہ محترمہ بی بی نور نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ فرمائی، مگر جلد ہی دستے قضا نے انہیں بھی آپ سے چھین لیا اور آپ کشمکش حیات میں تنہا رہ گئے۔ والدین کے ورثے سے ایک باغ اور ایک پن چکی آپ کو ملی تھی، لہٰذا آپ نے باغبانی کو معیشت کا ذریعہ بنایا اور باغ کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے۔ اپنے ہاتھوں سے باغ کی حفاظت کرتے اور پانی و کھاد وغیرہ دینے کے ساتھ
इसकी काट छांट करते थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद अचानक एक रूहानी वाक़ये ने आपकी जिंदगी का रुख बदल दिया। एक रोज आप अपने बाग में मसरूफ थे कि एक मजजूब फकीर का इधर गुजर हुआ, जिसका नाम इब्राहिम कंदोजी था। ख्वाजा साहब ने इन्हें बाग में आता देखा तो खुश हुए और अंगूरों के एक ताज़ा खोशे से इनकी ज़ियाफ़त की। साहिबे नज़र ने साहिबे दिल को पहचान लिया और महसूस कर लिया कि नौजवान काम का आदमी है। अपनी गठरी से रोटी का एक खुश्क टुकड़ा निकाल कर बढ़ाया। ख्वाजा साहब ने इसे खाया तो इश्को अरफान की कैफियत ने दिल पर असर जमाना शुरू कर दिया। एक रूहानी इनकलाब का एहसास होने लगा। बुजुर्ग तो अपना काम करके चले गए, मगर जल्द ही आपने अपना बाग और पंचक्की फरोख्त कर डाली और हासिल शुदा रकम गरीबों में तकसीम करके इल्मे दीन हासिल करने के लिए निकल पड़े। ख्वाजा साहब ने सबसे पहले बुखारा और समरकंद जाकर ज़ाहिरी अलूम की तहसील की। इसके बाद मुर्शद कामिल की तलाश में निकल पड़े। इस जमाने में इराक के कस्बे हारून में सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग और अपने वक्त के वलिये कामिल हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह रहते थे। इनके दस्ते हक परस्त पर बैत हुए और इक्तसाबे फैज करने लगे। दौरान इबादत और रियाजत मुतअद्दिद अहलुल्लाह से मुलाकातें होती रहीं। अंदाजा है कि तकरीबन 2.5 साल तक आप अपने मुर्शिद की खिदमत में रहे। इसी बीच हज बैतुल्लाह का फरीजा भी अदा किया। ख्वाजा साहब के बारे में आपके मुरीदो खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी ने लिखा है कि आप तवील इबादतें किया करते थे और मुसलसल कई कई दिन तक रोजे रखा करते थे। अफ्तार बहुत कम मिकदार में करते थे। जिस्म पर मामूली लिबास होता था और इस पर भी कई कई पेवंद लगे होते थे। साहिब खुजियतुल असफिया तहरीर फरमाते हैं कि जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर रोशन जमीर से इजाजत हासिल करके रुखसत हुए तो अतराफे आलम में सफर फरमाते हुए दर्दमंदों की चारा साजी तशनगान अलूमा मुआरिफ की सैराबी फरमाते रहे। जहां आपकी शोहरत हो जाती वहां से छुपकर चले जाते। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हिंदुस्तान आमद हुई, आपकी इस्तकामत का इम्तिहान शुरू हो गया। चनाचा पृथ्वीराज ने अपने इलाके में इस्लाम की रोशनी देखी तो ताब ना ला सका और अपनी नापाक साजिशों से शमा इस्लाम को बुझाने की कोशिश करने लगा। आपको और आपके वाबस्तगान को हिंदुस्तान से रुखसत करने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने लगा। मसाइब व मुश्किलात में उलझाने की कोशिश की। जहां कहीं आप तशरीफ फरमा हुए वहां से चले जाने के लिए जहमत दी जाती। सितम की इंतहा ये थी कि हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके जानिसारों के लिए पानी पर पाबंदी लगा दी गई। अजमेर के तालाब अना सागर पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया। गोया हुक्मराने वक्त आपके साथ इंसानियत सोज हरकतें करने के दरपे हो गया, बल्कि इससे भी बदतर सलूक करने लगा। इन सब के बावजूद भी आपकी साबित कदमी में हुक्का बराबर फर्क न आया। आप इशाअते दीन मतीन के लिए मुकम्मल कमर बस्ता रहे और कभी अपने पाए इस्तकलाल को डगमगाने ना दिया। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तालीमात इस्लामिया की तरवीजो अशात निहायत ही खुश असलोबी से अंजाम दी। आपके सिद्को सफा खलूसो वफा को देखकर लोग सदाकत शुआर और रास्तबाज हुए। आपके हल्मो बुर्दबारी, जूदो सखावत और दीगर अखलाके आलिया से मुतासिर होकर लोग उम्दा इखलाक के हामिल और पाकीज़ा सिफात के पैकर हुए। महज दिल्ली से अजमेर तक सफर के दौरान कई लाख अफराद मुशर्रफ़े बा इस्लाम हुए। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चंद इरशादात आलिया। गुनाह तुम्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना मुसलमान भाई को ज़लील ख्वार करना।
नेकों की सोहबत नेक काम करने से बेहतर है और बुरों की सोहबत बुराई करने से बदतर है। यकीन एक नूर है जिससे इंसान मुनव्वर हो जाता है, इसके बाद महबूबों और मुत्तकियों में शामिल हो जाता है। जो चाहता है कि महशर की होलनाकियों से महफूज रहे, वो भूखों को खिलाए, नंगों को पहनाए और मुसीबत ज़दों की फरियाद रसी करे। शक्की वो है जो नाफरमानी करे और समझे कि मैं मकबूल बंदा हूँ। कोई शख्स सिर्फ अदब वज़ाइफ से कुर्बे इलाही हासिल नहीं कर सकता जब तक वो नमाज न पढ़े। जो शख्स फराइज़े इलाहा को अदा नहीं करता वो हराम रोजी खाता है। रश्तो हदायत का ये आफताब, इनकलाबे दावत का ये महताब 99 साल की उम्र में 6 रजब 633 को अफ़के आलम से हमेशा के लिए गरूब हो गया। इस मुख्तसर से अरसे में आपके उम्दा इखलाक, रोशन किरदार और दिल नशीन दावत के नतीजे में लातादाद लोग इस्लाम में दाखिल हुए। लाखों ने ईमान की तजदीद की, हजारों ने बादाए इल्मो अरफा किया। आपके बाद आपके खुलफा और खुलफा के खुलफा भी तबलीग दीन और खिदमत खल्क के काम में मसरूफ रहे। इनमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख वजीहुद्दीन, सुल्तान मसूद गाजी और शेख वहीदुद्दीन खरासानी के नाम सरे फहरिस्त है, जिन्हें आपने अलग अलग इलाकों में तबलीग इस्लाम के काम में लगाया था। ख्वाजा साहब की तरबियत याफ्ता इन बुजुर्गों और इनके बाद इनके खुलफा और जानशीनों की कोशिशों का नतीजा था कि मुल्क के गोशे गोशे में इस्लाम की रोशनी आम होने लगी और हर तरफ आज़ान कुरान की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इस तरह आज हिंदुस्तान में जो इस्लाम और तौहीद की रोशनी नजर आती है, ये कहीं न कहीं इसी चिराग का नूर है जिसे ख्वाजा साहब ने रोशन किया था। दौरे हाजिर में बिलखसूस हिंदुस्तान के जां बालब हालात और फिरका वाराना माहौल में हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जिंदगी के इस नाकाबिले फरामोश इखलाकी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि इखलाकी कदरों को वुसअत दी जाए, किरदार का हथियार इस्तेमाल किया जाए। हिंदुस्तानी मुसलमानों खसूसन उलमाए कराम की जिम्मेदारी है और दौरे हाजिर इसका मुतकाजी है कि आलमी अमन की बका, अदल व मसावात का फरोग, मजहब व अकीदा की आज़ादी, रवादारी व यकजहती, बाहिमी अमदाद व ताआवुन, इंसानी जज्बात व एहसासात का एहतराम, इंसानी ज़मीर की तरबियत और आज़ादी फ़िक्र ख्याल के हवाले से इस्लाम के इक़दार हयात को उजागर करें और ख्वाजा साहब की इन अमन पसंद पाकीज़ा तालीमात को नशर करने में नुमाया किरदार अदा करें। सामीन मोहतरम, उम्मीद है कि आपको आज का ये किस्सा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने हल्का अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। अब आपसे मुलाकात होगी नई बेहतर वीडियो में नए बेहतर किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।